लोग स्टडी कर रहे हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स। So in last class we discussed natural methods of birth control, which were periodic abstinence, coitus interruptus, and lactational amenorrhea. After that, we also studied surgical methods of birth control, which are applicable for both male as well as female. In male, Haas difference is cut and tight, and in female, fallopian tube oviduct is cut and tight. So, transportation of gamete is blocked, right? There is no chance for gametes to meet. And I have already told you, surgical method is terminal method. Means it should be followed by the couple only after completion of the family, because chances of reversibility is very less. Yeah. Now the method which we have to study today is barrier methods. Barrier methods. Barrier methods का जो प्रिंसिपल है, that is usually it is the principle for all the methods mating of gametes are prevented. However, in some cases production of gamete is checked. ठीक है ना? प्रिंसिपल बताया मैंने कि बर्थ कंट्रोल मेथड का जो नॉर्मल प्रिंसिपल है, जो जनरल प्रिंसिपल है, वह तो है कि मीटिंग ऑफ गैमेट जो है, गैमेट्स उसको प्रिवेंट कर देते हैं, चेक कर देते हैं। जब स्पर्म और एग मिलेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो उस दोनों को आसपास नहीं आने देते। बट by using specific chemicals, we can also check either the production of sperm or the production of egg. Okay? So chemical methods are not only used as a barriers, but also there are specific chemicals which can prevent the formation of gametes. समझे ना? ये जो केमिकल मेथड है ना, वह केवल गैमेट्स को मीटिंग के लिए प्रिवेंट नहीं कर सकता। केमिकल्स को हम यूज कर गैमेट्स के प्रोडक्शन को हम चेक कर सकते हैं। सो लेट अस डिस्क्राइब दीज मेथड्स वन बाय वन। इसको एक एक करके देखते हैं। नाउ कम्स टू फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स डिस्क्राइब करेंगे अभी। वी हैव टू डिस्क्राइब ईच मेथड इन डिटेल, ठीक है ना? एग्जांपल्स पढ़ेंगे, चिंता नहीं करेंगे, एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। नाउ कम्स टू द फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स Physical barriers are the devices which are used either by male or by female so that gametes are not allowed to meet, right? And these physical barriers are condom in the case of male
condom in the case of male. Female condom is also available. That is called female condom, or you can say femidom. Female condom is also available nowadays, and besides these condoms, there are specific devices which can only be used by females, are diaphragms, boards, and cervical caps. Cervical caps. Now, condom is used by male to cover the penis so that sperms are not released into the female reproductive tract. समझिए ना, कंडोम में क्या होता है? It is the sheath that is used to cover the penis. Femidom is also like that of condom and is used by the female. Principle of both are same and both are used only once. कंडोम एक ही बार यूज होता है, ठीक है? और इसमें क्या होगा? फीमेल यूज करेंगे और इसमें मेल यूज करेगा। दोनों का बेनिफिट है, जितने मेथड्स यहाँ फिजिकल बैरियर्स देख रहे हैं, दे आर नॉट ओनली प्रिवेंटिंग द मीटिंग ऑफ गैमेट्स बट ऑल्सो चेक्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इस सारे का फायदा क्या है? एक कोई बर्थ कंट्रोल करता ही है, ठीक है? These are used as devices to control the birth by preventing the mating of gametes, right? तो बर्थ कंट्रोल तो क्या ही, एंड इसके अलावा इसके फायदे हैं कि ये एसटीडीज को प्रिवेंट करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को चेक करता है। Diaphragms, boards and cervical caps, these are the specific devices used by female to check release of sperms into the female genital tracts. फिजिकल बैरियर समझ गए बेटा? फिजिकल बैरियर्स में हम लोग क्या करते हैं? ये डिवाइसेस यूज करते हैं। So the common devices which are used are condom by male, femidom by female, and female can also use other alternatives which are diaphragms, boards and cervical caps. All these, ये सभी जो है क्या करता है? All these tools, ये जितने टूल्स हैं, दे चेक बर्थ कंट्रोल एज वेल एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, राइट? तो फिजिकल बैरियर समझ गए आप? अब हम चलते हैं दूसरा जो बैरियर है, दैट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, आईयूडीज। आईयूडीज को क्या कहते हैं? इंट्रा यूटेराइन devices. As the name indicates, intrauterine, it means uterus is involved. So IUDs are only used by females, right? IUDs को कौन यूज करेंगे? Only फीमेल यूज करेंगे। ये जो IUDs है, ये हो सकता है बायोलॉजिकली इनर्ट आईयूडीज
biologically inert iodines, copper releasing iodines, and hormone releasing iodines. Hormone releasing iodines. तो आयोडीन 3 तरह का हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले जो आयोडीन यूज होना शुरू हुआ, दैट इज बायोलॉजिकली इनर्ट आयोडीन्स, जिसका एक नाम आप याद रखेंगे, आपके बुक में दिया हुआ है, लिपेज लूप, ठीक है, लिपेज लूप। ये बायोलॉजिकली इनर्ट आईडी है। इसमें एक डिमेरिट यह है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को चेक नहीं कर सकता। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले कहा है कि यूटेरस के अलावा यदि कहीं पर इम्प्लांटेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो बायोलॉजिकली इनर्ट आईडीज can check the implantation in uterus but not in fallopian tube, means there is chance of pregnancy in this case. So this type of IUD is not common in use nowadays. आजकल इसको हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है। IUDs are the most common devices. Most common device है जो यूज होता है इन इंडिया। सेकेंड इज कॉपर आयन रिलीजिंग IUDs। ये कॉपर आपका आयन रिलीज करता है। ये एक टी शेप डिवाइस है जिसमें मेम्ब्रेन के ऊपर कॉपर का जो है वो वायर जो है वो लगा होता है, एंड इट इज इंसर्टेड इनटू द यूटेरस ऑफ द फीमेल। यूटेरस फीमेल में नहीं होता है, ठीक है ना। तो फीमेल के यूटेरस में यदि हम यूटेरस ही कह दें, फीमेल कहने की जरूरत भी नहीं है, तो ये यूटेरस में फिट किया जाता है बाय मींस ऑफ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और ट्रेंड नर्स कैन इंसर्ट इट। नाउ ये क्या करता है, कॉपर आयंस रिलीज करता है जो फैगोसाइटोसिस करता है स्पर्म्स का, यानी स्पर्म्स जो है उसकी संख्या कम हो जाती है, बहुत सारे स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। समझ में आ गया। और चूंकि फिजिकल बैरियर है, फिजिकलिटी है ना, डिवाइस है ना, चूंकि ये यूटेरस में फिट होता है इसलिए हम अलग कर दिए इसको आईयूडीज है, तो डिवाइस ही, तो इट इज इंसर्टेड इन यूटेरस। तो स्पर्म जो है उसके मूवमेंट को तो चेक करेगा ही, तो स्पर्म की जो मोटिलिटी है दैट इज आल्सो रिड्यूस्ड। तो दो काम करता है, स्पर्म्स को फैगोसाइटाइज करता है एंड स्पर्म्स के मोटिलिटी को चेक करता है, राइट। नाउ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ द आईयूडीज जो है वो क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग आयोडीन में आप नाम याद रखेंगे, कॉपर टी एंड मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375 इसका नाम याद रखेंगे कॉपर रिलीजिंग आयोडीन में। मोस्ट कॉमनली यूज्ड आयोडीन जो है दैट इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज।
समझे ना? तो ये कॉपर रिलीजिंग आईवीज की तरह ही काम करता है और एडिशनल काम भी करता है। मीन्स स्पर्म को फैगोसाइटाइज करता है क्योंकि इसमें भी आयंस रिलीज होते हैं। स्पर्म के मूवमेंट को कम करता है क्योंकि ये भी फिजिकल बैरियर है, ये भी डिवाइस है। और क्या करता है ये? इससे हार्मोन्स रिलीज होता है, हार्मोन्स रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरॉन एनालॉग यानी प्रोजेस्टेरॉन की तरह का हार्मोन, सिंथेटिक हार्मोन है जो प्रोजेस्टेरॉन लाइक एक्शन करता है। तो उस आईडी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन ये हार्मोन का क्या काम है? ये हार्मोन यूटेरस के एंडोमेट्रियम को हॉस्टाइल बनाता है। मीन्स यूटेरस के एंडोमेट्रियम में चेंज लाता है so that endometrium becomes hostile. Means implantation cannot occur even after fertilization. एक तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा और यदि जायगोट भी बन गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा बिकॉज ड्यू टू हार्मोन, ये जो सिंथेटिक हार्मोन है इसके कारण एंडोमेट्रियम में चेंजेस होते हैं। That is not suitable for implantation. दूसरी बात क्या होती है? मैं कभी आपको कहा होगा कि जब प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो सर्वाइकल म्यूकस जो है वह थिक हो जाता है। एस्ट्रोजन जो है वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है, प्रोजेस्टेरॉन सर्वाइकल म्यूकस को ठीक करता है। सो दैट क्या होता है? स्पर्म कैन नॉट पास थ्रू द सर्वाइकल म्यूकस, राइट? तो हार्मोन रिलीजिंग आईवी चार काम किया: फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, रिड्यूसिंग द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, मेक्स endometrium hostile, and fourth makes cervical mucus thick so that sperms cannot cross the cervix and result will be birth control. Is it clear now? समझ में आ गया आपको कि हाउ आईवीज वर्क? हाँ, इसका एग्जांपल याद करेंगे, इसका भी दो एग्जांपल याद करेंगे, आपके बुक में है। एक प्रोजेस्टा सर्ट है और एक LNG-20, ठीक है? तो प्रोजेस्टा सर्ट एंड LNG-20 आप दोनों एग्जांपल्स याद रखेंगे। ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं और हार्मोन्स कैसा होगा? प्रोजेस्टेरॉन एनालॉग होगा, प्रोजेस्टेरॉन जैसा होगा और उसका फंक्शन क्या होगा? एंडोमेट्रियम को हॉस्टाइल बनाएगा और सर्वाइकल जो फ्लूइड है उसको थिक करेगा।